Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Today is 10th of June 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. Today our topic is social institutions, and in this lecture we will also discuss about the primary social institution, one of the significant social institution, that is family. So let us first try to understand the meaning of social institution. Social institution is a group of social positions connected by social relations performing a social role. Simple. Any group of individuals who have specific, we can say, social positions, who have specific social roles to perform, who are connected by social relationships. So we can say, for example, a school. A school is a social institution. It is not the building. Unless the education process is uh, carried out in that structure, it is not that structure, that physical structure, the buildings. It is basically the students, the teachers, the, we can say, the headmaster, who enter into a social relationship. They have specific roles to perform. On the one side there are students, on the other side there are teachers. Teachers have their specific role, students have their specific role. They are organized. There are some special rules and regulations which everybody has to follow. So social institution का मतलब होता है समाजी इदारा, मुआशरती इदारा. तो ऐसा कोई भी इदारा जिसके अंदर जो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों की एक जमात होती है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक मुनज़्ज़म होती है. उनके यहाँ पर कवायद और ज़वाबित पाए जाते हैं. उस हिसाब से वो अपना अपना जो रोल उनको दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं. जो किरदार उनको दिया जाता है वो उसको अदा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरह वहाँ पर टीचर्स होते हैं, हेड मास्टर और प्रिंसिपल होता है. तो ये सब मिलकर उस इंस्टीट्यूट को बनाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एक सोशल रिलेशनशिप होती है. ये एक दूसरे से रवाबित रखते हैं. ये एक दूसरे से समाजी जो उनका ताल्लुकात होता है, एक तरफ से वो शागिर्द तालिब इल्म होते हैं, दूसरी तरफ से जो असातिज़ा किराम होते हैं उनका अपना रोल होता है. जो तालिब इल्म होते हैं उनका अपना रोल होता है. जो प्रिंसिपल साहब होते हैं या हेड मास्टर साहब होते हैं उनका अपना जो रोल होता है. और ये रोल वो एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत, कवायद और ज़वाबित के तहत अपना अपना जो किरदार, अपना अपना जो रोल है वो अदा करते हैं. It can also be defined in a narrow sense as an institution in a society that works to socialize the groups of people in it. In simple terms, we can say any institution in the society that works to socialize the groups of people in it, because the members of a social institution, they have special or social positions, specific social roles. They interact with each other, they have social relationship with each other. So they try to influence each other. The members try to influence each other through interaction, through relationship. And one of the most significant thing is that this social institution socializes the individuals, the members, which means that it helps the individuals in order to live a smooth social life, because we have different aspects of social life, and it is these social institutions which provide guideline to the individuals how to conduct their behavior, how to live in a society, how to interact with individuals, how to interact with groups. So these all aspects of social life are learned in these social institutions. तो यहाँ पर जो ये इदारे होते हैं, समाजी इदारे या माशरती इदारे, उनका एक ख़ास काम होता है. जो भी इनके साथ वाबस्ता होते हैं, चाहे ये कोई ऑफिस हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई मजहबी इदारा हो, तो इनमें जो अफराद काम करते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, और ये उन अफराद को इश्तराकी बनाता है. इश्तराकी का मतलब होता है
उनको समाज के अंदर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह का जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती है उनके बारे में वो सीखते हैं। कैसे अपने दूसरे साथियों के साथ उठना बैठना बात करना, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, तो समाज के अंदर कुल्ली तौर पर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, तो ये चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंसान ये चीज़ें सीख जाता है। हालांकि उनका एक मखसूस रोल भी होता है, लेकिन साथ साथ ये सोशलाइजेशन भी होती है उन अफराद की, क्योंकि एक ग्रुप के तौर पर वो वहाँ रहते हैं, तो दूसरे जो उसके बाहर जो ग्रुप्स होते हैं, जो लार्जर सोसाइटी होती है, वो अपनी फैमिली में किस तरह अपनी लाइफ गुजारेंगे, अपनी सोसाइटी में दूसरे ग्रुप्स के साथ, दूसरे अफराद के साथ किस तरह वो ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये चीज़ भी वहाँ पर उनको सीखने को मिलती है। Social institutional examples: universities, governments, families, and any people or groups that you have social interactions with. तो ये सब examples of social institutions, because universities, governments, government offices, families, these are all examples of social institutions, because they comprise of individuals, they are a group of people where every member have a specific social role. They enter into social relations, they enter into social interaction. So social interactions, they take place in these institutions. Socialization of individuals take place in these institutions. So these are examples of social institutions. तो ये सब मिसाल हैं। जैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी एक रेगुलेशन के तहत उनके पास कवायद ज़वाबित होते हैं। वहाँ पर जो तालिब इल्म होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो सब एक इंटरेक्शन में आते हैं, एक सोशल रिलेशनशिप में होते हैं, और उनका अपना अपना एक रोल किरदार होता है। साथ साथ वहाँ पर वो जो ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, जो ग्रुप बिहेवियर होता है, उसको सीखते हैं, ताकि आगे चलकर वो समाज के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे अपना बिहेवियर कंडक्ट करें। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर सीखने को भी मिलती हैं। तो इन इदारों को हम समाजी इदारे या सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. Why are these institutions established? What is the role of these social institutions? What is the function of these institutions? First is, institutions are purposive, because every institution has some purpose. It is not that this institution is purposeless. It has some goal, it has some purpose for which it has been created, it has been established. सो हर समाजी इदारा जो होता है उसका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। जैसे स्कूल का अपना मकसद है, इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनका अपना मकसद होता है, एक मजहबी इदारा होता है उसका अपना मकसद होता है। तो बिना मकसद के ये क्रिएट नहीं किए जाते, इनको बिना मकसद के बनाया नहीं जाता है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट इन देयर कंटेंट। अब दूसरी बात कि उनका जो अपना रोल होता है वो एक परमानेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली होती है, तो दुनिया के हर समाज के अंदर, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके अंदर ये फैमिली सिस्टम मौजूद है। तो इसका एक अपना रोल है, किस लिए फैमिली वजूद में आई, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, तो ये परमानेंट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो स्कूल्स होते हैं, उनका अपना एक रोल होता है, ये हर समाज में उनका रोल यही होगा। इसी तरह रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, ये सब एक तरह के परमानेंट इदारे होते हैं, और इनके रूल के हिसाब से इनका जो किरदार होता है समाज के अंदर, उस हिसाब से ये हम कह सकते हैं परमानेंट होते हैं। Institutions are structured. Now, important point here is that every social institution is structured. It is organized. For example, they have a set of rules, regulations, and as I earlier told that in every social institution there is some specific positions for every member, and they play their role, their specific social role. So these are structured, मुनज़्ज़म होते हैं. Institutions are unified because every institution is a group of individuals who come together in order to perform their social roles according to their social positions. So they act as a unit. वो एक जमात की तरह, एक यूनिट की तरह यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास एक पर्पस होता है, एक ख़ास मकसद होता है। जैसे स्कूल का मकसद है कि अपने बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनको अच्छी तालीम दे, वो अच्छे अच्छी तरह कामयाब हों।
तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस मकसद को अचीव करने के लिए वो सारा जो उनके जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हेड मास्टर होते हैं, बाकी जो भी उसके मेंबर्स होते हैं, वो यकजहती से काम करते हैं उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए। तो ये एक यूनिट होता है। Institutions or necessary value ladder. Now, when institutions have a value system, they or organize it, or they are run on the lines of some we can say set of values, norms, behavior patterns. So in every institution you will find that they have their own value system, because they are run through rules and regulations. They have their own behavior patterns. They have their social positions, wherein everybody obeys one another. They influence each other, and they have a value based this we can say behavior patterns, norms. तो एक इदारा जो होता है, समाजी इदारा, यहाँ पर लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, जो अफराद होते हैं, वो एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम के तहत काम करते हैं। उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उनका अपना एक तौर तरीका होता है काम करने का, एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के साथ जो उनका सोशल रिलेशनशिप होता है उसको कंडक्ट करने का। तो ये हर इदारे में पाया जाता है। Next is institutions simplify social behavior for the individual person. The ways of thinking and even acting have become largely regularized and pre-arranged for the individual before he enters in society. Next important characteristic is that every social institution simplifies the behavior for the individual person, because an individual is a member of society. How he has to conduct his life, his social life in the society, how he has to interact with other individuals, how he has to interact with other groups, how his life will be conducted smoothly. So these things are we can say learned in this social institution. They provide a framework to the individual. They provide a ready-made set of social values, norms, behavior patterns, or how to conduct behavior, how to we can say how to create social relation, how to interact with other members, other groups. So these types of different aspects of social life are just provided in a framework to an individual. तो यहाँ पर क्या होता है कि हर इदारा जो होता है, क्योंकि वो जो बंदा होता है उसमें काम करने वाला वो एक फ़र्द होता है एक समाज का, तो उसके लिए ये इदारा एक रेडीमेड जिसे हम कहते हैं तैयार करदा जो एक फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज़ के समाज के अंदर ग्रुप एक्टिविटी के अंदर कैसे चलना है, टीम वर्क के अंदर कैसे चलना है, कैसे अपने बिहेवियर को कंडक्ट करना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना बात करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो इन इंस्टीट्यूशंस में ये सब भी इंसान सीखता है रेडीमेड तौर पर, क्योंकि एक इंसान चूँकि क्या कहा जाता है कि जो इंसान पैदा होता है उसको मरने तक सीखना पड़ता है। तो हर कोई बंदा, चूँकि अगर एक बंदे को आप अकेले तन्हा किसी जगह जंगल में रखेंगे, तो आप देखोगे उसको फिर 10 साल के बाद वापस लाओगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि उसको कुछ पता भी नहीं होगा कि इंसान समाज के अंदर कैसे रहना, फैमिली के अंदर कैसे रहना, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। तो ये सब चीज़ें एक सोशल इंस्टीट्यूशन में उस इंसान को दी जाती हैं। Social institutions provide every child with all the needed social and cultural mechanisms through which he can grow socially. So basically, these social institutions provide a mechanism to the individual, how he can grow his life, how he can develop his personality, how the cultural life, how his social life is conducted in the society, how he will interact with other people, other members of the society who have different cultural backgrounds or who have the same cultural background, and how he can conduct his life smoothly in the society. So these types of these norms, values, behavior patterns are provided to an individual through the social institution. तो ये सब चीज़ें उनको सोशल इंस्टीट्यूशन में एक इंसान सीख पाता है। जैसे आप स्कूल में हो तो यहाँ पर आप एक ग्रुप क्लास के अंदर भी और बहसियत एक स्कूल के अंदर भी, तो आप सीखते हो कैसे हमें मेल्स के साथ बात करनी है, उनके साथ बिहेव करना है, कैसे टीचर्स के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ बिहेव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सोशल लाइफ के बारे में मतलब सीखते हो, ताकि बाहर जाकर
आप समाज के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, और जो भी समाज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसा बर्ताव करना है, किस तरह से उनके साथ पेश आना है, तो कैसे सोशल लाइफ कंडक्ट करनी है, ये सब चीज़ें आप इसमें सीख जाते हो. Institutions therefore provide ready-made forms of social relations and social roles for the individual. The principal roles are not invented by the individuals, they are provided by the institutions. So they provide a ready-made set of values, behavior patterns to the individual, how to conduct his social life in that group and outside that group, with other individuals, with other groups in the society. तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि उसको एक रेडीमेड फॉर्मेट जैसा एक रेडीमेड फ्रेमवर्क दिया जाता है, उसको वहाँ पर सीखता है कि लोगों के साथ काम करते करते, अपना रोल अदा करते करते, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते करते उनके साथ जो सोशल रिलेशनशिप उसका बढ़ता है, तो इन चीज़ों को वहाँ पर समाज में फिर अप्लाई करता है. तो इस तरह उसकी ज़िंदगी सोशलाइज होती है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो लाइफ है उस सोशल लाइफ को अच्छी तरह से कंडक्ट करता है. Institutions also act as agencies of coordination and stability for the total culture. The ways of thinking and behaving that are institutionalized make sense to people. और यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि ये सोशल इंस्टीट्यूशन एक सोसाइटी में मतलब क्रिएट किए जाते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, तो उस सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है. तो एक बंदा जब किसी इदारे में इंटर होता है, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनता है, तो वहाँ पर वो जो कल्चरल पैटर्न्स होते हैं, उसका सोशल लाइफ होता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर मायने रखती हैं, क्योंकि उसने समाज के अंदर क्या सीखा, फिर उस सोशल ग्रुप के अंदर वो सब चीज़ें देखता है, तो इन चीज़ों को वो देखकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से स्मूथली कंडक्ट करता है. और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी सीखता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, दे हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो एवरी पर्सन हैज़ अ सम specific social role. He has to conduct his social role according to the norms, according to values, according to rules. So यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी होता है, एक दूसरे के साथ एज ए यूनिट काम करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन भी सीखता है यहाँ पर, ताकि स्टेबिलिटी आए इस इंस्टीट्यूशन में, सो बाहर जाकर इस समाज के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि समाज उन इंस्टीट्यूशन से बना होता है. तो जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, स्टेबल होंगे, उसका मतलब भी है कि वो समाज भी, वो सोसाइटी भी स्टेबल और स्ट्रांग, मजबूत होगी और मुस्तहकम होगी. Institutions tend to control behavior. They contain the systematic expectations of the society. Group behavior is often subconsciously fixed through constant repetition. And while there is a need for planning, the group can easily ascertain from its institutions the normal moods, trends, and procedures. So, basically, this is the same thing. The institutions influence the behavior of the individual. He is expected some typical behavior structure or pattern. He has a specific social role to play, and under some certain rules and regulations, norms, he is expected to behave in a particular manner, in a fixed manner. So the social institution influence the conduct of an individual, the behavior of an individual, the way he thinks, the way he conducts his social life. So इसमें ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर असरअंदाज होती हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह कंडक्ट करता है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो मौजूद है या नहीं है, तो उसमें वो सीखता है दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ ज़िंदगी किस तरह जो मतलब गुजारनी है, उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन करना है. तो ये सब चीज़ें उसको समाज के अंदर पाई जाती हैं. Now we have different types of social institutions. Today we will discuss about the most important social institution, that is family. Family is the smallest social institution with the unique function of producing and rearing the young. Family is a social institution because it is the only social institution where the offsprings, the reproduction takes place, the reproduction of offsprings takes place, and the rearing of those young or offsprings take place. तो जो परिवार होता है, जिसे हम कुंबा भी कहते हैं, परिवार भी कहते हैं, तो ये भी एक सामाजिक ग्रुप होता है, एक सोशल जो इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा होता है, समाजी इदारा होता है. तो इसमें जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो अफराद होते हैं, यहाँ पर एक जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसिंग एंड रियरिंग ऑफ यंग होता है. जैसे आप स्कूल के अंदर देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का होगा, उसके साथ वो जो बाकी जो
मतलब कंडक्ट होगा बिहेवियर के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन जो फैमिली होता है यहाँ पर एक ख़ास किस्म का एक जो हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन एंड रियरिंग ऑफ यंग, छोटे बच्चों की पैदाइश और उनकी देखभाल, उनके रियरिंग वो यहाँ पर हो जाती है। तो ये एक ख़ास किस्म का एक ग्रुप सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक ख़ास किस्म का समाजी इदारा होता है जहाँ पर जो चूँकि इसमें अक्सर जो मतलब जो फैमिली कंप्राइज होती है किनसे, एक जो होते हैं फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन। तो फिर उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज होती है, लेकिन बेसिक यूनिटी ही होता है कि it consists of father mother and his children. So we can say they have uh, two types of relationships. First is consanguineal and second is conjugal, because the we can say husband and wife, they are related through marriage. This is known as conjugal, and the children are related to their parents through blood relationship. This is known as consanguineal relationship. तो जो फैमिली होता है, परिवार होता है, ये यहाँ पर एक मतलब जो मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि जो मियाँ जो और जो बीवी होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो कंजुगल रिलेशनशिप में होते हैं। वो उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो बेस्ड होती है मैरिज पर, शादी ब्याह के उस पर बेस्ड होती है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो आपस में अपने माँ बाप के साथ या अपने आपस में जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो ब्लड रिलेशनशिप से कनेक्ट होते हैं, उनके दरमियान खूनी रिश्ता होता है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर prevalent in the family, and it is the only institution where production, or we can say where young are produced and their rearing takes place. तो यहाँ पर बच्चे भी जन्म लेते हैं, उनकी rearing भी, caring भी, ये सब सिर्फ फैमिली में होता है। और वी कैन से अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस हुज रिलेशंस टू वन अनदर आर बेस्ड अपॉन कंsanguinity एंड हु आर देयरफॉर किन्स टू वन अनदर। तो यहाँ पर चूंकि मैंने पहले बोला कि फैमिली जो होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इंडिविजुअल्स होता है, उनकी आपस में कंsanguinity होती है, दे आर रिलेटेड थ्रू ब्लड, we can say also their relationship is conjugal, they are related through this marriage, because marriage is the basic institution through which this family uh, this social institution of family takes place. We can say this family is created out of the marriage institution. So जब दो लोग अपोजिट सेक्स के मतलब मर्द और औरत शादी करते हैं, निकाह करते हैं, तो उसके बाद ही फैमिली का मतलब वजूद में आता है। तो वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, उनकी देखभाल होती है, उनकी रियरिंग होती है, उनकी तरबियत होती है। और ये फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप्स होती है वो कंsanguinity पर भी होते हैं, खूनी रिश्ता भी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ खूनी रिश्ते से होते हैं वाबस्ता, और आपस में भी उनका खूनी रिश्ता होता है। और जो मियाँ बीवी होते हैं वो थ्रू मैरिज जो होता है उस हिसाब से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो मैरिज शादी के ज़रिए एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। या हम इसको और भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी है बर्गस ने। उसने कहा कि फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन, consisting of a single household, interacting and intercommunicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating a common culture. So the best on this definition is that family is a, we can say, group of persons. They are united by blood, they are united by marriage, they are united by adoption. Adoption का मतलब कि चूँकि कुछ मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, अब वो किसी का बच्चा अडॉप्ट करते हैं, उसको गोद लेते हैं, तो वो भी उस फैमिली का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप तीन तरह की होती है एक फैमिली के अंदर। ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो या तो मैरिज के थ्रू आपस में रिलेटेड होते हैं, या ब्लड रिलेशन होती है, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ रिलेशन में होते हैं थ्रू ब्लड, इसी तरह उनके आपस में भी ब्लड रिलेशनशिप होती है। अब किसी फैमिली में बच्चे नहीं होंगे तो वो अडॉप्शन के थ्रू बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो वो गोद लेते हैं, तो वो बच्चा अडॉप्शन के थ्रू उस फैमिली का हिस्सा बनता है। साथ साथ उसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल हाउस होल्ड, तो वो एक ही मकान में रहते हैं। यहाँ पर एक ही मकान का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही कमरे में रहते हैं, उनके अब अलग अलग मकान भी हो सकते हैं, बट दे कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट। तो एक ही, क्योंकि उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो बेस्ड होते हैं कंsanguinity पे, या कंजुगल या खूनी रिश्ता होता है आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक मियाँ और बीवी वो अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे उनके बच्चे किसी जगह पढ़ाई करते हैं, लेकिन ओवरऑल चूँकि वो एक हाउस होल्ड में रहते हैं, फॉर टाइम बीइंग वो अलग अलग हैं, लेकिन चूँकि वो एक सिंगल हाउस होल्ड के तले रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तो वो आपस में रिलेटेड होते हैं थ्रू मैरिज एंड ब्लड, इंटरैक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं, उनके इंटरेक्शंस भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं एंड दे हैव देयर स्पेसिफिक रूल्स। और उस फैमिली के अंदर हर जो फ़र्द होता है उसका अपना अपना एक रोल होता है। फॉर एग्जांपल एक फादर होता है, दूसरा मदर होती है, कोई एक बच्चा होता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे मदर एंड फादर, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये सब मिलकर इस फैमिली में अपना अपना एक रोल अदा करते हैं, और उनके आपस में जो रिलेशनशिप होती है वो बेस्ड होती है, और एडॉप्शन थ्रू एडॉप्शन ब्लड रिलेशनशिप होती है, या फिर वी कैन से दिस कंजुगल रिलेशनशिप होती है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, फैमिली जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसके अंदर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ वाबस्ता होते हैं थ्रू ब्लड रिलेशन, थ्रू कंजुगल रिलेशन और थ्रू एडॉप्शन। और वो एक हाउस होल्ड के अंदर रहते हैं और एक दूसरे के साथ वाबस्तगी होती है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उनके अपने अपने एक स्पेसिफिक सोशल रोल्स होते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज चिल्ड्रन, एज ब्रदर एंड सिस्टर। सो हम कह सकते हैं फैमिली ए ग्रुप ऑफ पीपल who are connected through blood or marriage or adoption, and who live in a single household, who have their specific social roles as father and mother, or husband and wife, brother and sister, and so on. Now, what why is this family institution created? इसकी importance क्या है? तो फर्स्ट हम इसकी देखेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं। ये फैमिली जो है ये समाज के अंदर कौन से फंक्शंस, जो इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन ऑफ द रेस एंड रेयरिंग ऑफ द यंग। क्योंकि फैमिली ही वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर, क्योंकि शादी जब दो लोग आपस में करते हैं, जो अपोजिट सेक्सेस होते हैं, मर्द और औरत, फिर वो मेटिंग के थ्रू उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पर जो रेस होती है, जो नस्ल होती है, वो आगे बढ़ती है। ये इसका एक ख़ास जो रोल है, फंक्शन है, और वहाँ पर उनकी रेयरिंग भी होती है। तो जनरेशन जो होते हैं, नस्लें आगे बढ़ती हैं थ्रू फैमिली, थ्रू मैरिज से, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एक मतलब फंक्शन है। कल्चरल ट्रांसमिशन और इनकल्चरेशन। अब उस फैमिली का जो कल्चर होगा, उनकी ज़ुबान, जैसे वो कैसे बात करते हैं, किस ज़ुबान में बात करते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, किस तरह वो एक दूसरे से पेश आते हैं, ये कल्चर जो होता है, ज़ुबान, सब अदब, ट्रेडिशंस, उनके रस्म और रिवाज, ये माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। तो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो कल्चर ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू फैमिली होता है, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि आपने हर जगह सुना होगा, क्योंकि जो बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है, मतलब जो लैप ऑफ हर और हिज जो मदर होती है, तो उससे उसकी परवरिश परवान चढ़ती है, क्योंकि माँ ही वो पहली शख्सियत होती है जो अपने बच्चे को चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है, उसको खाना सिखाती है, कैसे खाना होता है। तो यहीं से उसकी सोशलाइजेशन होती है, इश्तराकियत। ताकि क्योंकि फैमिली एक सोशल यूनिट होता है, वो भी एक ग्रुप होता है। जब एक बच्चा फैमिली में सीखेगा कि कैसे लोगों के साथ, अपने जो परिवार के जो अफराद हैं उनके साथ बर्ताव करना है, उनके साथ उठना बैठना है, बात करना है, तो फिर आज आगे चलकर वो बाकी जो ग्रुप्स हैं या समाज के अंदर, उसका नेबरहुड है, उसका स्कूल है, फिर आगे चलकर जैसे उसकी तरबियत घर में होगी, तो उसी हिसाब से फिर वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी दूसरे ग्रुप्स के साथ, दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कंडक्ट करता है। प्रोवाइडिंग अफेक्शन एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और ये सबसे अहम बात एक और है कि एक फैमिली के अंदर एक बच्चे को मोहब्बत दी जाती है और सिक्योरिटी, वो अपने घर के अंदर सिक्योर, महफूज अपने आप को मतलब तस्वर करता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी, जैसे उसको कोई दुश्मन से खतरा, तो अपनी फैमिली के अंदर वो रहता है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उसको किसी जगह कोई इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, उसको कोई दुख दर्द तकलीफ होती है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी परवाह करते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो एक बच्चा अपने फैमिली के अंदर खुद को बहुत महफूज समझता है, और वहाँ पर उसके जो चाहने वाले होते हैं, उसके माँ बाप, भाई बहन, तो उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी एक घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर मिलती है।
प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, उसकी जो शख्सियत है वो यहीं पर परवान चढ़ती है। वो अपने माँ बाप को एक रोल मॉडल देखता है। जिस तरह उसके माँ बाप कंडक्ट करते हैं अपना बिहेवियर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह मेहनत की, किस तरह दूसरों के साथ उठे बैठे, तो उनका असर इसकी ज़िंदगी पर पड़ता है, इसके बिहेवियर पर पड़ता है। तो इस तरह उसकी जो शख्सियत होती है वो घर के अंदर परवान चढ़ती है। वहाँ पर उसके अखलाक वो सीखता है, आदाब सीखता है, आदात सीखता है, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी, उन सब की जो अखलाक या उनके जो नॉर्म्स वैल्यूज़, किस तरह बर्ताव करना, ये सब चीज़ें वो अपने फैमिली में ही पहले सीखता है। प्रोवाइडिंग सोशल स्टेटस, और सबसे अहम बात और है कि एक समाज के अंदर जो फैमिली होती है उसका अपना एक रुतबा होता है। मतलब आप देखते हो कि जो फैमिली का स्टेटस होगा, फॉर एग्जांपल कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका बच्चा भी, उसके वो लोग फिर उसी स्टेटस, उसी नज़र से देखते हैं, उसी हैसियत से देखते हैं। कोई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा तो उसका स्टेटस वैसे ही रहता है। आगे चलकर वो अपने स्टेटस को मतलब चेंज कर सकता है थ्रू मतलब एजुकेशन। वो अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी नौकरी हासिल करके अपने स्टेटस को अच्छा बना सकता है। लेकिन जब एक बच्चा एक फैमिली में पैदा होता है तो उसका स्टेटस भी वहाँ पर तय होता है। अक्सर जिस तरह जब उसकी बर्थ होती है, तो अगर वो बड़े ख़ानदान में पैदा होगा तो लोग कहते हैं कि ये बड़े ख़ानदान का बच्चा है। छोटे ख़ानदान में होगा तो वो छोटे ख़ानदान का बच्चा। तो ये एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को एक स्टेटस भी, एक हैसियत भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो फैमिली के एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नस्ल नस्ल जो आगे बढ़ती है वो फैमिली के ज़रिए, चूँकि मैरिज इंस्टीट्यूशन के थ्रू, फिर बच्चे जो रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसके ज़रिए नस्ल आगे बढ़ती है। फिर जो उस ख़ानदान का जो कल्चर होता है, तमद्दुन होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, एक नस्ल से दूसरी जनरेशन नस्ल तक वो फैमिली के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। फिर इस बच्चे की सोशलाइजेशन इस तरह की हिसाब से उसकी परवरिश होती है। एक फैमिली का फ़र्द होकर उसको सिखाया जाता है आदाब, उसको सिखाया जाता है कैसे बिहेव करना है दूसरे लोगों से, कैसे बात करने से, कैसे खाने पीने की आदत होती है। ये सब चीज़ें वो अपने फैमिली, अपनी चूँकि माँ के पास ही सीखता है। फिर अपने मतलब जो भाई बहन, उसका जो वालिद होगा, उसका जो फादर होगा, उससे भी सीखता है। तो अपनी फैमिली से ही सीखता है। प्रोवाइडिंग अफेक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसको फैमिली के अंदर एक मतलब हिफाजत मिलती है, और अफेक्शन मोहब्बत भी मिलती है और हिफाजत भी मिलती है। तो हर चीज़ जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा आता है, उसकी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है, तो वो अपनी फैमिली को ही वहाँ पर याद करता है। अपनी फैमिली ही उससे सपोर्ट करती है, उसको केयर करती है, उसको मोहब्बत देती है और उसको इन चीज़ों से हिफाजत करती है जो उसके लिए नुकसानदेह होती है। प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, और उसकी जो शख्सियत है उसका भी निखार अपनी फैमिली से ही होता है, और साथ साथ उसको अपने फैमिली के ज़रिए समाज के अंदर एक हैसियत, एक रुतबा भी मिलता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, फैमिली क्या है, और इसके फंक्शंस क्या हैं सोशल दिस फैमिली के। क्योंकि फैमिली एक बेसिक यूनिट है, इसी से फिर समाज का जो समाज वजूद में आता है। तो इंशाल्लाह हम कल इसमें जो आगे और टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया हो इंशाल्लाह, तो आप मुझे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। तो जहाँ पर आपकी कोई भी मुश्किल होगी, कोई दिक्कत होगी, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। टेक केयर। अल्लाह।